Good morning, students. Now, in this lecture, we have to discuss real functions. Some of the real functions that will be useful in our 11th standard. So, today's our topic is some standard real functions. Some standard real functions. Done. So, we have already discussed real functions and real valued function. So what is real function? Real function are the function whose domain and range both are real numbers. Done? So domain and range belongs to set of real number. That functions are known as real function. While in case of real valued function, domain not required to be a real function, a real number. Done? So let's start with first one. Our first real function is nothing but the identity function. First function is nothing but the identity function. Identity function. So what is identity function? जैसे नाम वैसे गुण. Identity, that means one function is there, one function from set of real number to real number. That means one function is given whose domain is real number and range is real number. So if the function give f of x equal to x, है ना, डोमेन में से जो भी एलिमेंट लेंगे तो जो रेंज आएगा वही नंबर मिलेगा. डन. तो जो नंबर डालेंगे वही नंबर मिलेगा. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x की सारी all वैल्यू के लिए, है ना, all values of x which belong to r, we are getting the same number. So this type of function is known as identity function, है ना. इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा इसका? ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. So here, if we try to draw the graph, it will be like this. This is y-axis. This is our x-axis. Done. We are taking all this x for this domain from this x, and in the output we are getting y, which is nothing but the f of x. Done. These are the two order pair x and y. So for each and every value of x, we are getting some value of y. So for this identity function, if you are taking 0, it will give us 0. If you are taking 1, the function will give us 1. Done. So graph of identity function will be like this. Graph of identity function will be like this. ना ऐसा होगा graph. So this is the graph of function f of x equal to x. Done. यहाँ से भी पास होगा. So this is the graph of identity function. So which are the properties of this identity function? So observations. We are writing some observations from this graph. So observation says that the graph of identity function, the graph of this identity function is a straight line. So graph is straight line. Graph of identity function is the straight line. That straight line is passing through the origin. Done. That is first observation. Second observation, straight line, that is graph, is passing through. Graph is passing through origin. Done. So this is the first real function, first standard real function. It is our identity function. उसको याद रखेंगे, function f from r to r. Done. तो यहाँ पर डोमेन की बात करें, domain of our function is nothing but the set of real number. And range की बात करें, range, so range of our function will also be a real number. Done. So function f from set of all real number to real number, f of x, है ना, ये important है, f of x is equal to x. जो डालेंगे इनपुट में वही आउटपुट मिलेगा. For all value of x belongs to r. ये r कौन सा है? डोमेन वाला. Done. This is graph and these are the observations. This is our first function, identity function. Okay. Second standard real function is nothing but the constant function.
constant function. So what is the constant function? So here constant function is defined as, let's say one function f from set of real number to real number, and if f of x equal to, we are getting some positive real number k, where k is some real number, k is some real number constant है ना, k is nothing but one real number constant. So for each and every value of this x from this domain, we are getting one constant output k. For example, if we are taking f of x equal to 12, done. So what is 12? 12 is nothing but one real number. So this is our constant function. इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, this is our y equal to f of x, this is our x. Now suppose if you are taking f of x equal to 12 है ना, यहाँ पर लिखते हैं, चलो first we are taking f of x equal to 12, here this 12 is greater than 0, पॉजिटिव आ गया. तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? सो ग्राफ ऑफ दिस f of x equal to 12 will be above the x axis, it will be parallel to x axis and above to x axis. So this is f of x equal to 12 है ना, यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी ना वो 12 रहेगी, 12 will be constant, x will be change है ना, x जैसे ही चेंज होगा लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. सो इफ this constant है ना, if we can say this constant, if k is greater than 0, if k is greater than 0, for that case graph will be है ना, graph of function, graph of function will be above x axis. If our constant is greater than 0, graph of the function will be above x axis. Now constant है ना, तो constant हम ऐसे भी लिख सकते हैं, suppose f of x equal to 0 is given, that means value of k is 0 है ना. if k is 0 तो क्या होगा? k 0, constant की वैल्यू 0 ले ली, तो ग्राफ कहाँ से पास होगा? ग्राफ will be coincide in x axis, graph will be coincide in x axis if constant is 0. So if our constant is 0, we can say graph will be coincide है ना. coincide मतलब the graph of this function will be lie above the x axis, so graph will be coincide with x axis, done. And third possibility, if value of this constant k is less than 0, suppose f of x equal to -5 is there, suppose k is less than 0 है ना, -5 मतलब k की वैल्यू नेगेटिव आ गई. So for that negative value of k, graph will be like this, it will be parallel to x axis but below the x axis, ये जो x axis है उसके नीचे आएगा. So for that case graph will be below the x axis, x axis के नीचे आएगा हमारा graph will be below the x axis. And for all these three cases we can see that graph of the constant function is parallel to x axis है ना. graph of constant function is always parallel to x axis, it is always parallel to x axis. आपको ये पॉइंट याद रखना है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू x axis, but there are three cases are there. If value of constant is greater than 0, then graph will be above x axis. If value of the constant is 0, then graph will be coincide with x axis, and if the value of constant is negative, then graph will be parallel to x axis but it will be below the x axis. Done. So this is the information of this constant function, इसमें आपको इतना याद रखना है. Done. So function f from R to R, where f of x is equal to k, where k is some real number. यहाँ पर domain और range की बात करें, so what is the domain? Domain of our function, domain. So here x can take different values from this R है ना, ये x की value देखो real number, so domain is R. Now what about its range? Range
x की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, x की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, फंक्शन ऑलवेज क्या कर रहा है, आउटपुट में सिर्फ k ही दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, कांस्टेंट k। सो हियर रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट द कांस्टेंट k। अगर वो k 12 होगा तो 12 ही आउटपुट आएगा, अगर वो कांस्टेंट 0 होगा तो 0 ही आउटपुट आएगा, अगर वो कांस्टेंट कुछ नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव नंबर ही आपके आउटपुट में आएगा। डन। So this is how we can define domain and range of this constant function. Clear, friends? Now, third standard real function is modulus function. Modulus function. That modulus function is also known as absolute value function. Absolute वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ना। तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो क्या होता है देखो। सो हियर फंक्शन f is defined from function f from r to r, set of real number to real number, and f of x equal to mod x, f of x equal to mod x, that is our मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होगी। दिस मॉड्यूलस लेंगे तो इट विल गिव अस आउटपुट x व्हेन x इज ग्रेटर देन, इट विल बी इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0, है ना। पहले तो आपको डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको मॉड्यूलस का फंक्शन, है ना, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ दिस mod x वो समझना है। तो देखो सपोज आई एम टेकिंग x इक्वल टू 5, x equal to 5 from the domain of this function. So if you are taking x equal to 5, what is 5? 5 is greater than or equal to 0. तो यहाँ पर क्या करेगा फंक्शन, f of 5 करेगा और 5 का मॉड्यूलस लेगा, और जो 5 था हमारा वही 5 आउटपुट में आएगा। देखो f of x लिया, x आउटपुट दिया। क्यों x का x आउटपुट दिया? क्योंकि जो x था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, है ना। किसी भी पॉजिटिव और 0 के लिए मॉड्यूलस फंक्शन सेम आउटपुट देगा, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन ऑपरेट कब करेगा, जब हमारा नंबर नेगेटिव होगा। सपोज मैं एक नंबर ले लूँ x इक्वल टू -7, है ना। सपोज f ऑफ -7 कर दो तो मॉड्यूलस क्या करेगा, मोड ऑफ -7 करेगा, और मोड ऑफ -7, है ना, x इज नेगेटिव, तो व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज नेगेटिव, मॉड्यूलस ऑपरेटर विल ऐड वन माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ दिस x। देखो इनपुट में हमने x डाला, फंक्शन जब x लेस देन 0 होगा तो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन वो x के आगे डाल देगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन x के आगे डाल देगा। x क्या है हमारी -7, तो माइनस के अगर माइनस साइन डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7, है ना। इसलिए जब भी हम मॉड्यूलस फंक्शन लेते हैं ना, मोड ऑफ किसी नेगेटिव नंबर लेते हैं तो वो आउटपुट में पॉजिटिव नंबर देता है। ये हमें सिखा गया था अब तक, इसका रीजन ये था। क्लियर सबको? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूलस फंक्शन? When number is greater than equal to 0, तो जो नंबर इनपुट में डालेंगे वही आउटपुट में मिलेगा। दैट मींस जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था ना वो मिला हमें, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कैसे ऑपरेट करेगा, सेम एज आइडेंटिटी फंक्शन, बट व्हेन x इज लेस देन 0, एट दैट टाइम आवर फंक्शन विल ऐड माइनस साइन, है ना, और फंक्शन विल ऐड दिस माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ दिस नेगेटिव x। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन हो गया। अभी इसका ग्राफ देखते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x y y इक्वल टू f ऑफ x। तो देखो ये हमारा 0, ये 0, ये साइड कौन सी हो गई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और ये साइड कौन सी हो गई, x लेस देन 0 के लिए। ये दो पार्ट है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये पार्ट के लिए फंक्शन क्या ऑपरेट कर रहा है, x में जो इनपुट में जो x डाल रहा है वही आउटपुट में x आ रहा है। तो ये पार्ट के लिए हमारा जो ग्राफ है इट विल बी सेम एज ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा हो गया f ऑफ x इक्वल टू मोड x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। और नेगेटिव साइड में x नेगेटिव होगा, लेकिन y हमारा क्या आउटपुट आएगा, रेंज क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, जिसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। दिस इज f of x equal to mod x when x is less than 0. Done. So this is the graph of modulus function. That graph is always passing from this 0 origin, है ना। तो यहाँ पर observations लिखे। First observation. So here first observation says that
और ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना. ग्राफ ऑफ मॉड्यूलेशन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस. तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है. दूसरा ऑब्जर्वेशन, द ग्राफ इज ऑलवेज अबव x एक्सिस, है ना. y की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलेगी. मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिव अस आउटपुट विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. पॉजिटिव आउटपुट देगा, 0 देगा या फिर पॉजिटिव देगा. आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेशन फंक्शन विल नेवर बी नेगेटिव. तो ये ग्राफ कभी नीचे तो आने वाला ही नहीं है. सो ग्राफ इज ऑलवेज अबाउट, है ना. ग्राफ इज ऑलवेज अबाउ द x एक्सिस. ये ग्राफ जो है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, वो ग्राफ ऑलवेज x एक्सिस के अबाउ ही रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा. डन. थर्ड ऑब्जर्वेशन, ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ऑलवेज ओरिजिन से पास होगा. डन. देखो ओरिजिन से पास होने वाला है. और जो ग्राफ है ना, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल और वी कैन से इट इज आइडेंटिकल टू द आइडेंटिटी फंक्शन. सो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्राफ इज identical to identity function. अगर सब इतने पोर्शन की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है विच इज सेम एज ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. डन. तो ये था हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं. इसके दो नाम. डन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और simply says modulus function. Clear friends? Now function क्या था हमारा? Function is function f from R to R. Domain और range की बात करें, so here domain of this function f. So here we are taking a value of this x from this set of all positive real numbers. तो सारे real number आ गए. अगर range की बात करें, range of this function will always, है ना. क्या आ रही है देखो, रेंज इज ऑलवेज x और x लेस दें होगा तो -x आएगा. तो रेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. 0 के ऊपर आ रही है तो 0 को ऐड करेगा और इनफिनिट तक जाएगा. तो दिस इज द रेंज ऑफ आवर मॉड्यूलस फंक्शन, है ना. 0 टू इनफिनिट. डन. नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी. तो दिस इज द रेंज एंड डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. Now, fourth standard real function is nothing but the signum function. तो देखते हैं क्या होता है हमारा signum function. So signum function is nothing but the function f from set of real number to real number, which is defined as f of x equal to mod x by x when x is not equal to 0. जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तब वो देगा mod x by x, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो सिग्नम फंक्शन हमें देगा 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन. अभी ये फंक्शन के अंदर मॉड्यूलेशन आ गया तो अभी ये डेफिनेशन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा. तो अगर ये डेफिनेशन को फिर से ब्रेक करते हैं तो क्या होता है देखो, फंक्शन f of x is mod x, और हमें पता है when x is greater than 0, है ना. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन इक्वल टू 0 के लिए तो 0 दे दिया, तो x is greater than 0 करेंगे तो क्या होगा, फॉर x greater than 0, ना, mod x का होगा x, so x by x, so this is equal to 1. So our signum function will give us output 1 when x is greater than 0. When x is equal to 0, x equal to 0 के लिए सिग्नम फंक्शन आउटपुट दे रहा है 0. और तीसरा केस है ना, x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके लिए ये आउटपुट. अगर x 0 नहीं है तो x क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो व्हेन x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो मोड x, है ना, मोड x की डेफिनेशन यहाँ पर -x होगा, डिवाइड बाय x होगा, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा -1. डन. सो दीज आर द 3 केसेस ऑफ द सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन ये होती है, लेकिन मोड की डेफिनेशन को फिर से ब्रेक करें तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होगी f of x equal to 1 when x is 0, when x is greater than 0, f of x equal to 0 when x is 0, and f of x equal to -1 when x is less than 0. डन. इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो समझ में आएगा. देखो ग्राफ कैसे होता है,
ग्राफ यहां पर ड्रॉ करें। So here this is x, this is y equal to f of x और here are 0। तीन पोर्शन है देखो, this is x equal to 0, this is x greater than 0 and this part is x less than 0। x की बात करें तो यहाँ से यहाँ पर x greater than 0, यहाँ पर x equal to 0 और यहाँ से यहाँ तक x less than 0। तो तीन पोर्शन है देखो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ऐसे डॉट कर देते हैं, है ना। x when x equal to 0 फंक्शन की वैल्यू 0, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन 1 होगा, है ना। तो 1, सपोज यहाँ पर 1 आप आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये 1 कहाँ पर आएगा, x के 0 एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 1 वहां पर क्या रहेगा, यहाँ पर नोड रहेगा, यहाँ पर डॉट रहेगा, और जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। डन। सेम वे x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए 0 को छोड़ के, 0 पर तो उसकी वैल्यू 0 ही है, लेकिन 0 से छोटा होगा x तब उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से एक नोड आएगा, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जैसे x हमारा लेस देन 0 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, सॉरी x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे हमारा वैल्यू वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। डन। So this is the graph of signum function. So here domain of our function f, domain की बात करें, so domain is nothing but the set of all the real numbers r, सारे x के लिए फंक्शन डिफाइन है। और रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर इनपुट में हम x की कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, रियल नंबर डाल रहे हैं, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, ओनली 3 वैल्यूज, है ना। x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 1 मिलेगा, x की वैल्यू 0 होगी तो 0 मिलेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो -1 आउटपुट मिलेगा। सो हियर रेंज इज -1, 0 and 1। डन। सो डोमेन ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन इज रियल नंबर, रेंज इज -1, 0 and 1। बस इतना ही था ये सिग्नम फंक्शन में, इसका ग्राफ आपको याद रखना है। Okay students, now fifth function is GIF, GIF, which is also known as full form greatest integer function, greatest integer function, है ना। उसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखो अच्छी तरह से देख लो, फंक्शन f फ्रॉम r क्रॉस r टू r इज गिवन। अरे ये क्या लिखा, फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज गिवन। डन। उस डोमेन इज r, रेंज विल बी r, r तो नहीं होगी, देखते हैं क्या होगा। सो हियर फंक्शन f ऑफ x which is greatest integer function defined as this one, इसको रीड करेंगे बॉक्स x। कैसे रीड करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x। ये जो बॉक्स x है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन और इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, है ना। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, उसी में सारा इसका फंक्शन का जो ऑपरेशन है ना वो छुपा हुआ है। सो बॉक्स x इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर less than or equal to x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x, तो बॉक्स x का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेकिंग 6.4, बॉक्स 6.4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो डेफिनेशन है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में ये ले लो सिर्फ ग्रेटेस्ट, और दूसरा जो पार्ट है ये वाला, डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, ग्रेटेस्ट और दूसरा पार्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। डन। इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो यहाँ पर मैंने 6.4 लिखा, इसका मतलब क्या आया, इंटीजर
इंटीजर लेस देन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 6.4 6.4 के इक्वल या फिर उससे छोटे सारे इंटीजर्स सबको आता है ना। इसका आंसर क्या आएगा? इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 6.4। इंटीजर्स मतलब z, तो सारे z 6.4 या फिर उससे छोटे, तो 6.4 तो एक कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन उससे छोटा कोई बात करे ना 6.4 से छोटा, तो इंटीजर आएगा 6, 5, 4, 3, 2, -1, 0, ये सारे आएंगे इनफाइनाइट। तो दिस आर द इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 6.4, ये सारे इंटीजर आ गए। अभी दूसरा पार्ट कंसीडर करो, ग्रेटेस्ट। उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 6, तो हमारा आंसर मिलेगा 6.4 इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। बॉक्स 8.4 को मारो गोली, कुछ नया नंबर लेते हैं। 8.9, बॉक्स 8.9, इसका मतलब क्या हुआ? सबको समझ में आएगा। डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो। पहले इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x, इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 8.9, तो 8.9 से छोटे है ना, इंटीजर्स लेस देन इससे छोटे और इससे इक्वल टू इंटीजर्स, तो 8.9 से छोटे इंटीजर्स कौन से आएंगे, है ना। नंबर लाइन पर 8.9 से छोटे कौन से होंगे? 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ऐसे इनफिनिट होगा। उसमें से ग्रेटेस्ट, इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 8। सो हियर बॉक्स 8.9 विल गिव अस 8। इज दैट क्लियर? सपोज नेगेटिव नंबर ले ले, नेगेटिव, चलो सपोज नेगेटिव नंबर ले लिया -1.2, -1.2, तो इसका हमें बॉक्स निकालना है, तो कैसे होगा? सो हियर वी हैव टू राइट इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू -1.2, तो -1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा? नंबर लाइन होगा, नंबर लाइन, ये 0, ये -1, -2, -3, तो -1.2 समवेयर ओवर हियर होगा, -1 और -2 के बीच में, है ना। जैसे जैसे लेफ्ट साइड पर जाएंगे नंबर छोटा होगा, तो -1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा? -2, सो -1.2 विल गिव अस एज अ -2, है ना। -2, -3, -4 ऐसे आएगा। उसमें से ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा? -2, सो -1.2 विल गिव अस एज ए -2। डन। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको समझने के बाद अभी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, क्योंकि उसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, उसके लिए हमें उसका ग्राफ देखना पड़ेगा। तो इससे पहले आप इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो अभी ग्राफ, है ना, डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर अच्छा वाला एक ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। चलो लेक्चर खत्म होने को आ रहा है, आज करें कि कल करें? चलो फटाफट कर देते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ, है ना। सो हियर दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। हियर -1, -2, -3, -4 आएगा। हियर 1, 2, 3, 4, 5। Now this one -1, -2, -3, -4, -5. Done. Now what about this 0 to 1 interval? Suppose you are taking 0 less than or equal to x less than 1. For this value of x from 0 to 1, the value of greatest integer function will be 0. 1 तक 0 रहेगा, 1 पर आपका आएगा node. Done. Now from 1 to 2, for this interval 1 less than or equal to x less than 2, for that case value of this integer function will be 1 to 2। यहाँ पर नोड आएगा, है ना। खुद से वैल्यू चेक करो। सपोज यहाँ पर एक वैल्यू ले ली 1.2, तो 1.2 के लिए हमें ग्राफ क्या आंसर देगा? 1 देगा। कहाँ तक? जब तक 1.9, 1.9 पर भी 1 देगा। जब 2 आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें 2 वैल्यू देगा। डन। सो 2 से 3 तक, है ना, हमें 2 ही मिलेगा। जब 3 आएगा x इक्वल टू 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल गिव अस 3 आउटकम। डन। तो ऐसे आपको स्टेप्स मिलेंगे। स्टेप्स देखो ग्राफ में आपको ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स मिल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नोन एज स्टेप फंक्शन। अगर नेगेटिव की बात करें तो 0 to -1 के लिए, ना 0 to -1 के लिए ग्राफ होगा ये, यहाँ पर नोड, यहाँ पर डॉट। ना -1 to -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू होगी
-2, जैसे -2 आएगा फंक्शन की वैल्यू -2 हो जाएगी। डन। सो हियर इन आवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वी आर गेटिंग द ग्राफ which is in the form of steps, है ना। देखो यहाँ पर steps फॉर्म हो रहे हैं, that's why this is known as step function। clear friends? So this is the graph of greatest integer function। बस इतना ही था इसके अंदर, है ना। property of greatest integer function is that greatest integer function is always passing through the origin। done। and this is symmetrical about the opposite quadrant। our greatest integer function is symmetrical about the opposite quadrant। देखो quadrant 1 and quadrant 3, so here graph is symmetrical about its opposite quadrant।